નમસ્કાર, કરંટ ટોપિકમાં આપનું સ્વાગત છે. આપની સાથે હું છું પાર્થ મોદી. દર્શક મિત્રો, આજે એક એવા મુદ્દા ઉપર વાત કરવી છે જે મુદ્દો ખૂબ જ સચોટ મુદ્દો, એક નજર ટિબેટ પર. કારણ કે ટિબેટની વાત કરીએ તો આપણને અભ્યાસક્રમની અંદર હંમેશા શીખવામાં એ આવ્યું છે કે ભારતનો પાડોશી દેશ એક બાજુ પાકિસ્તાનની વાત કરીએ તો બીજી બાજુ ચાઇનાની વાત કરીએ, પરંતુ જ્યારે ભૌગોલિક દ્રષ્ટિએ કે નકશામાં જોઈએ છે તો ટિબેટ છે. પરંતુ ટિબેટ 1950માં બળજબરીપૂર્વક ચાઇના દ્વારા હડપી લેવામાં આવ્યું, એટલે કે એક્ઝાઇલ કરવામાં આવ્યું. 1950ની અંદર ટિબેટના ઘણા હજારો ટિબેટિયનોને ચાઇના ગવર્મેન્ટ દ્વારા ત્યાં રૂલિંગ કરવામાં આવ્યું, એટલે ઘણા બધાને મારી નાખવામાં આવ્યા, ફોર્સફુલી બળજબરીપૂર્વક પ્રવેશ કરવામાં આવ્યો. ઘણી બધી પરિસ્થિતિઓ, વિકટ પરિસ્થિતિઓનો અત્યારે સામનો થઈ રહ્યો છે. આપણે ઘણી વખત સમાચારોમાં એવું સાંભળીએ છીએ કે ભાઈ લદ્દાખ છે, કે લદ્દાખની અંદર ચીન અતિક્રમણ કરી રહ્યું છે, કે પછી પેંગોંગ લેકની આગળ ચીન પહોંચી ગયું છે, ચીન રસ્તાઓ બનાવી રહ્યું છે. આ તમામ વસ્તુઓ આપણને સાંભળવામાં આવે છે. દેશની અંદર રાજકીય ગતિવિધિઓ પણ એવી જોવા મળી રહી છે. એક બાજુ જો ગવર્મેન્ટ છે, ગવર્મેન્ટ કહે છે કે હાલ પરિસ્થિતિ ઠાળે છે, પરંતુ બીજી બાજુ વિપક્ષી દળો એવું કહે છે કે ચીન અતિક્રમણ વધી ગયું છે. એ પછી અરુણાચલ પ્રદેશની વાત હોય, કે પછી ફાઈવ ફિંગર્સ કે નેપાળની વાત હોય, ભૂટાનની વાત હોય, ચાઇના પોતાનો હક જમાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યું છે. પરંતુ આ પરિસ્થિતિઓની વચ્ચે ટિબેટની જ્યારે વાત કરીએ તો ટિબેટમાં શું હાલત છે? જ્યારે બળજબરીપૂર્વક જ્યારે કોઈ પણ સરકાર બીજા કોઈ પણ વિસ્તાર કે કોઈ પણ દેશ ઉપર અતિક્રમણ કરે એટલે સર્વોજ્જીન કહેવામાં આવે, ત્યાંના લોકોનું શું માનવું છે? ટિબેટની વાત કરીએ તો ટિબેટ એ બૌદ્ધિસ્ટ ધર્મને પાળવાવાળો એક આખો વર્ગ છે, એક આખો દેશ છે. પરંતુ હાલમાં શું પરિસ્થિતિ છે? આ તમામ પરિસ્થિતિ ઉપર ચર્ચા કરવી છે, કારણ કે આજની આ વિશેષ ચર્ચાની અંદર આપણે વાત કરીશું એક નજર ટિબેટ પર. એટલા જ માટે આજે આપણી સાથે ટિબેટના સાંસદ આપણી સાથે જોડાયા છે, दोरजी सैतन. दोरजी सैतन, आपનું સ્વાગત છે. आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में. નમસ્તે જી. દર્શક મિત્રો, સાંસદનું જો હું પરિચય આપું તો તેઓ મૂળ ગુજરાત સાથે જોડાયેલા છે, કારણ કે એમનો ઉચ્ચ અભ્યાસ ગુજરાતની MS યુનિવર્સિટીની અંદર ઉચ્ચ અભ્યાસ થયેલો છે. ગ્રેજ્યુએશન એમનું MS યુનિવર્સિટીમાં થયેલું છે. એટલે ગુજરાતના ભૌગોલિક દ્રષ્ટિથી, ગુજરાતના લોકોથી એટલા વાકેફ છે. અને પાડોશી દેશ છે એટલે ઘણો બધો એક અણસાર આપણને જોવા મળે. સાથે સાથે એમના વિશે જો વધારે માહિતી આપું તો 15 દેશોનો તેઓ પ્રવાસ ખેડી ચૂક્યા છે. 2016થી તેઓ એક્ઝાઇલ ગવર્મેન્ટ ઓફ ટિબેટની અંદર કાર્યરત છે. હાલ એમની सेकंड टर्म ચાલી રહી છે. सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी जो ये दौरा है, गुजरात का दौरा है, दर्शक मित्रों 17 થી 24 ઓગસ્ટ સુધી એમની વિઝિટ રહેશે ગુજરાતની અંદર. અલગ અલગ સાંસદો અલગ અલગ ભારત દેશના અલગ અલગ જે राज्यों છે એની અંદર मुलाकात કરી રહ્યા છે. सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी जो ये आपकी ये विजिट है गुजरात के अंदर, तो कैसी रहेगी, क्या ऑब्जेक्टिव्स है और क्या इम्पोर्टेंस लेके आप आए हो? हाँ जी, जो हमारे धर्मशाला में जो तिब्बती जो निवासिक सरकार है उसका एक संसद का मेंबर हूँ, और अभी 17 तारीख से मैं और मेरा सहयोगी श्रीमती सेरिंग लामो जी, हम दोनों गुजरात के दौरा में हैं. और हमारा ये मुख्य उद्देश्य है कि हम इलेक्टेड लीडर्स हम उनसे मिले, हमारा तिब्बत का अभी के जिस स्थिति है उसका बात रखें. और हम 2 दिन पहले हम बड़ौदा में भी गए, MS यूनिवर्सिटी में हमने अपना बात रखा. एक तरह का जो युवा है, न्यू जनरेशन इंडियन, उनसे मिले. हम यहाँ गांधीनगर में रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे, जो हमारे गुजरात यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे. तो जो युवा पीढ़ी है उनके से मिलके जो तिब्बत का जो मसला है, क्यों भारत के लिए महत्वपूर्ण है, और जो अभी संघर्ष जो चीनी द्वारा जो बॉर्डर इंट्रूशन कर रहे हैं, और इंडिया में जो थ्रेट जो चीनी शासन द्वारा हो रहा है, उसका समाधान क्या है, हम कैसे अपना संघर्ष करेंगे. और जो अभी तक जो भारत ने हमको सहयोग दिया उसका हम तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहेंगे. लेकिन अब हम ये वक्त आ गया कि हम कैसे हमारा जो मुद्दा है, तिब्बत इशू है, ऊपर उठाएंगे. तो ये बात रखने के लिए हम यहाँ आया. अभी तक हमारा जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा जा रहा है, और हम ये आशा करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग से मिले, और ये TV के माध्यम से ज़्यादा
के लोग से हम अपना जो बात रखें, यही हमारा उद्देश्य है जी। सर, आपने बोला कि जो परिस्थितियां है तिब्बत के अंदर, जो चीन द्वारा जो रूलिंग फोर्सफुली रूलिंग कर रहा है चीन, तो अभी ग्राउंड लेवल पे अगर बात करें तो क्या परिस्थिति और वहाँ के जो जन समुदाय है वो क्या स्थिति फेस कर रहा है, अभी वहाँ पे क्या सिचुएशन है करंट? पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि तिब्बत में चीन ने 1959 में जब अपने वश में किया है, तब से लेके अभी तक लगभग 60 सालों से आगे तिब्बती जो अंदर में, जो तिब्बत के अंदर ने अपने जो आंदोलन, जो परम पावन दलाई लामा जी के मार्गदर्शन द्वारा जो नॉन वायलेंस थ्रू जो अपना संघर्ष किया है, वो अभी भी कर रहे हैं। और उन्होंने कभी भी अपना जो आज़ादी का और कभी भी अपना जो रिस्पेक्ट है दलाई लामा से दूर नहीं किया, और वो सोचते हैं कि अभी भी कि दलाई लामा जी तिब्बत आना चाहिए और ये मांग रखते हैं। लेकिन जो चीनी शासन द्वारा बहुत ही जो क्रूरता से जो नरसंहार किया हुआ है, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, वो हमारे सोच से बाहर है। और अभी जो कुछ पॉलिसी जो मैं उदाहरण के द्वारा मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि एक पॉलिसी जो अभी रिसेंटली जो यूनाइटेड नेशन में फरवरी में एक यूएन एक्सपर्ट ने रिपोर्ट निकाला है, उनमें कहा गया है कि लगभग 10 लाख से जो तिब्बती युवा, जो छात्र जिसका उम्र 5-6 साल है, उनको फोर्सिबली जो चाइनीज़ द्वारा जो कॉलोनियल बोर्डिंग स्कूल में भर्ती कर रहा है। तो उनका ये उद्देश्य है कि जड़ से तिब्बती का जो हमारा संस्कृति है, हमारा लैंग्वेज है, हमारा कल्चर है, उसको मिटाने की एक पॉलिसी है। जैसे कि अभी तिब्बतन का जो पॉपुलेशन है 6 मिलियन है, 60 लाख, उसमें से 10 लाख के जो नंबर अगर वो तिब्बतन जो फैमिली से फोर्सिबली बच्चा छीन के उसमें डाल रहे हैं, और ये यूएन का एक्सपर्ट का रिपोर्ट है, तो हम ग्लोबली ये हम अपना बात रखते हैं कि उसको पॉलिसी को रोकना चाहिए। तो ये एक बहुत क्रिटिकल जो है हमारे डायरेक्टली जो तिब्बतन आइडेंटिटी के ऊपर जो उन्होंने जो वार किया है, वो बहुत चिंताजनक है। और एक दूसरा जो पॉलिसी वो भी बहुत चिंताजनक, जो डीएनए कलेक्शन जो चीनी सरकार द्वारा, मिलिट्री द्वारा जो पूरे तिब्बत में उन्होंने ये अभियान शुरू किया है। लगभग 5-6 साल का बच्चे का डीएनए वो कलेक्शन कर रहा है, और बहुत की पॉपुलेशन में एक तरह से तिब्बत चीनी ने एक सिक्योरिटी का लेबोरेटरी टेस्ट जैसे कर दिया है। तो ये भी बहुत जो चिंताजनक है, और ये हम बात ऊपर रख रहे हैं। और जो हमारे जो धर्म का जो हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसको काफ़ी उन्होंने रोक रखा है, और जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो, बेसिक ह्यूमन राइट्स का उन्होंने बहुत उल्लंघन किया। तो वो विषय हम जैसे यहाँ हम जब इलेक्टेड लीडर से हम मिलते हैं या बाहर हम जाते हैं, तो हम ये बात रखते हैं कि हमें सहयोग चाहिए कि ऐसा जो क्रूरता का जो पॉलिसी है उसको ख़त्म किया जाए। तो ये अभी स्थिति चल रहा है, लेकिन संघर्ष जारी है, संघर्ष हो रहा है, और हमें ये आशा है कि एक दिन तिब्बत ज़रूर आज़ाद होंगे, क्योंकि तिब्बती जो अंदर है, जितने भी उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन उन्होंने कभी भी चीनी सरकार को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने अपना संघर्ष जारी किया है। ડેફિનેટલી દર્શક મિત્રો, એક નજર ટિબેટ ઉપર અને ટિબેટની જો વાસ્તવિકતા છે એની વાત થઈ રહી છે. ફાઇટિંગ ફોર ટિબેટ્સ, ફાઇટિંગ ફોર રાઇટ્સ એ અત્યારે ચાલી રહ્યું છે. જે રીતે સરે વાતચીત કરી આપને જણાવી દઉં કે 12 લાખથી વધુ ટિબેટિયન જ્યારે એક્ઝાઇલ થયું કે ચીની અતિક્રમણ થયું ત્યારે 12 લાખથી વધુ ટિબેટિયન્સ માર્યા ગયા. જે મઠો હોય ટિબેટના, જે મઠો એટલે કે આધ્યાત્મિક જે ધાર્મિક જે મઠો છે, 6,000થી વધુ મઠો હતા એનો નાશ કરવામાં આવ્યો. એટલે ક્યાંક એક રીતે જે રૂટ્સ છે કે જે संस्कृति है एनो क्या नाश કરવામાં આવી રહ્યો છે टिबेट ની અંદર. सर जी, जैसे कि बात करें कि जो परिस्थितियां हाल अभी है, ह्यूमन राइट वायलेशन जो हो रहा है, साथ में आपने बोला कि वहाँ पे राइट्स जो बच्चों का जो टेस्टिंग हो रहा है, डीएनए टेस्टिंग हो रहा है, ये वो जो चीज़ें हैं, पर एक साइड पर देखें तो टिबेटियंस पॉपुलेशन के कंपैरिजन में चाइना की पॉपुलेशन अभी वहाँ पे बढ़ रही है. हाँ जी, तो चाइना का बहुत पहले से ये उसका जो ऑब्जेक्टिव रहा है कि तिब्बतन को अपने ही देश में माइनॉरिटी किया जाए, तो पॉपुलेशन ट्रांसफ़र वो कर रहे हैं. लेकिन अभी लगभग 60-70 के
साल हो गए जो ऑक्यूपेशन, मिलिट्री ऑक्यूपेशन करके, फिर भी जो अभी मैंने जो उदाहरण में जो 2 पॉलिसी जो तिब्बती जो छात्र जो बच्चे का जैसे कॉलोनियल बोर्डिंग स्कूल में डालना या डीएनए लेना, ये दर्शाता है कि बलिभात में तिब्बत को चीन ने हड़प लिया है, मिलिट्री रूल किया, लेकिन तिब्बत का दिल कभी उन्होंने उसको कभी नहीं अपने वश में कर सका। इसलिए तिब्बत संघर्ष करता है, इसलिए अभी भी जो चीनी सरकार है इनसिक्योर है तिब्बत के विषय में, और उसका जो पॉलिसी स्पेशली अभी जो अभी का सरकार जो शी जिनपिंग द्वारा जब से उन्होंने ये लिया है, जैसे कि इंडिया में जैसे आपका बॉर्डर इंट्रूशन देखो, तिब्बत में जो नरसंहार वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए और हमें उसका आवाज़ उठाना चाहिए। ડેફિનેટલી દર્શક મિત્રો, રાષ્ટ્રનું પુનઃગઠન એ ખૂબ જરૂરી છે, કારણ કે જ્યારે એક પરંપરાગત કે તમે પોતાની એક વિચારધારા લાવવા માંગતા હો, એમાં રાષ્ટ્રનું પુનઃગઠન અને એના જ માટે આ લડત ચાલી રહી છે। સર जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी जो ये सिचुएशन है, जो करंट सिचुएशन आपने बताई, उसके बारे में तो पता चल गया, पर भारत की दृष्टि से तिब्बत का कितना इम्पोर्टेंट है? क्या भारत और भारत का सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है तिब्बत के लिए? हाँ जी, तो जैसे तिब्बत के विषय में हम ग्लोबली सहयोग के लिए हम जाते हैं। रिसेंटली हमारा पार्लियामेंट द्वारा हम यूरोप में भी गए, उसका एक मेंबर मैं भी हूँ, तो कुछ देशों से हम सहयोग के लिए हम गए। लेकिन देखा जाए तो तिब्बत के आज़ादी के संघर्ष में सबसे ज़्यादा अगर जिसने सहयोग दिया, जिस तिब्बत के साथ बैठे, वो भारत है। तो ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम भारत के अंग अंग में जाए और भारतवासी से मिले, इलेक्टेड लीडर से मिले, युवा से मिले कि क्यों तिब्बत का विषय भारत के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा पहले तो कि 1959 से पहले भारत और तिब्बत का बॉर्डर, जब तिब्बत आज़ाद था, एक बफर स्टेट था, एक सिक्योरिटी था। लेकिन जब चीन ने तिब्बत पे आक्रमण किया, अपने वश में किया, अभी लगभग 4000 का जो किलोमीटर जो हिमालयन बॉर्डर, अभी जैसे भारत का डिफेंस का जो भी एक्सपेंस जाता है, और जो चाइना द्वारा जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी उन्होंने अपनाया है, उनका पहले से यह उद्देश्य है कि ऑब्जेक्टिव रहा है कि तिब्बत को उन्होंने कब्जा किया, क्योंकि तिब्बत सबसे ऊपर उसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड मानता है, रूफ ऑफ द एशिया। तो अगर एशिया में दबदबा करना है तो तिब्बत चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए उन्होंने तिब्बत को अपने वश में किया। तो स्ट्रेटेजिकली फॉर द सिक्योरिटी तिब्बत बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और जो अभी बॉर्डर जो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में रिसेंटली जो गलवान में जो इंसिडेंट हुआ 2020 में, अभी जैसे अरुणाचल में चीन जो कर रहे हैं, तो हम जो मैकमोहन लाइन जो अभी जो बॉर्डर की बात कर रहे हैं, असल में 1914 में शिमला कन्वेंशन में तब का जो भारत, ब्रिटिश इंडिया और तिब्बती डेलीगेशन ने रखा हुआ ये एक ट्रीटी है, वो दर्शाता है कि तिब्बत एक आज़ाद देश था। वो ट्रीटी द्वारा हमारा तिब्बत और भारत का बॉर्डर था। अगर भारत और जो अभी चीन के ऊपर जो अभी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसका अगर समाधान चाहिए तो तिब्बत का समाधान बहुत ज़रूरी है। इसलिए तिब्बत का सिक्योरिटी रीज़न बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके ऊपर जो हमें ये भी जानना चाहिए कि इकोनॉमिकली तो है ही है, लेकिन इन्वायरमेंट जो अभी हाल ही में अभी के वक्त में जो हर भारतवासी चिंतित है, जैसे हमारा हिमाचल में बाढ़ आ गया, राइट, अभी जो रेनी सीजन द्वारा इतना जो ऑल ऑफ सडन हमें ये क्वेश्चन करना चाहिए क्यों हो रहा है, क्यों इन्वायरमेंट में इतना मुश्किलें क्यों हो रहा है। तो ये साइंटिस्ट दर्शाता है कि तिब्बत को जो सबसे ऊपर एशिया में है, उसका महत्वपूर्ण इन्वायरमेंट के लिए कितना है। तो चीनी द्वारा जो इन्वायरमेंट डिस्ट्रक्शन कर रहा है, जो माइनिंग एक्टिविटी कर रहा है, एक्सटेंसिव, आप सोच भी नहीं सकते कितना कर रहे हैं। और जो डैम बना रहा है, जो तिब्बत द्वारा एक वाटर टावर मानता जाता है कि 10 से ज़्यादा जो रिवर एशिया, इंडिया और साउथ एशिया में जाता है, जैसे इंडस हो लो, सतलुज मान लो, ब्रह्मपुत्र मान लो, ब्रह्मपुत्र का जो रिवर डाइवर्शन प्रोजेक्ट वो चाइना द्वारा कर रहे हैं। तो ये एक्टिविटी एक इन्वायरमेंट डिस्टर्बेंस हिमालय में कर रहा है, उस द्वारा पूरा हिमालयन बेल्ट का इन्वायरमेंट में डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये द्वारा तिब्बत के इशू तिब्बती वासी के लिए नहीं, भारतीय और भारतीय वासी और होल एशिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें ये गंभीरता से हमें ये इशू को लेना चाहिए और हमें चीन का
इस अपना बात रखना चाहिए फोर्सफुली, और एक यूनाइटेड फोर्स हमें खड़ा करना चाहिए जो हमें चीन के साथ हमारे ये संघर्ष में लड़ सके, उसका जो आवाज़ आगे लेके। डेफिनेटली। लेकिन सर अगर चाइना की बात करें तो चाइना हर बार यही चीज़ बोलता रहता है कि अगर 5 सिस्टर की बात करें, लद्दाख की बात करें, नेपाल की बात करें, सिक्किम की बात करें, भूटान की बात करें, कि अरुणाचल प्रदेश की बात करें, चाइना ऑल ऑफ सडन यही बोलता रहता है ये जो सारे स्टेट है, ये जो सारी है जगह है वो हमारी है। तो मतलब बेसिकली देखना चाहे तो वहाँ की आवाम, कि वहाँ की जनता क्या मानती है, वो इंडिया का पार्ट मानती है कि क्या फोर्सफुली उनको बुलाया जाता है कि यू आर इन चाइना, क्या सिचुएशन है वहाँ पे? जो रिसेंटली अभी जो मोस्ट रिसेंट जो अरुणाचल में जो अरुणाचली जो इंडियन है उनको स्टेपल वीज़ा देना, उनको एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है चीन द्वारा, वो उसका एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है। वो ये अभी भी नहीं, जब तिब्बत का जो उन्होंने अपने वश में किया, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो पूरा एशिया में कैसे कंट्रोल किया जाए। तो जो अभी जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसका हमें एक सिक्योरिटी रीज़न में देख के तिब्बत का इशू इतना इम्पोर्टेंट है, जो मैंने पहले भी आपको किया, जो मैकमोहन लाइन जिसका बारे में हम बात करें वो तिब्बत के साथ किया हुआ है। और हम ये भी also आपको इस माध्यम द्वारा हमें ये मैं बोलना चाहूँगा कि रिसेंटली जो गलवान में हुआ है, बहुत दुखद की बात है कि एक मिलिट्री इंट्रूशन हुआ, 20 से ज़्यादा जो शहीद हुए हमारे जो भारत के जो मिलिट्री है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए हर वक्त अपना जान कुर्बान करने के लिए रेडी है। लेकिन तिब्बती समुदाय द्वारा जो 1962 के वार के बाद, जिसको हम SFF करते हैं, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जो टिबेटन बैटलियन जो इंडियन में स्थापित किया है, शुरू किया है, अभी जो गलवान इंसिडेंट में हमारा एक तिब्बती जो टिबेटन जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में है वो शहीद हुए गलवान के जो अभी इंसिडेंट में। तो जो हिमालयन बेल्ट में जो लद्दाख है, अरुणाचल है, जो सिक्किम है, हमारे हिमाचल के बेल्ट में हर कोई भी और तिब्बती, हम सब इस संघर्ष में, हम भारत बलिभात में जो हिमाचल के जो हिमालयन में हो वो भारतीय है, और हम तिब्बती इसके संघर्ष में हम उनके साथ हैं। हम अपने देश के लिए, हम आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, और हमारा तिब्बती भारत के जो सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए अपने जान तक निछावर ऐसे देने वाले बहुत सारे जो हमारे जो जिन्होंने अपने बलिदान दिया हुआ है। तो ये हमें समझना चाहिए, और हम सब एक साथ, और अभी ये वक्त आ गया है कि भारत सरकार को, भारत के वासी, स्पेशली गवर्नमेंट, पार्लियामेंट में हम ये बात रखें कि तिब्बत एक आज़ाद देश था, और अभी तिब्बत चाइना में के अंदर मिलिट्रीली इलीगली ऑक्यूपेशन में जा रहा है, और हम उसके सहयोग में है। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने का, एक पोजीशन लेने का, एक ऐसा स्ट्रेंथन पॉलिसी जो डायरेक्टली चीन को हम ये बात रखने का एक समय आ गया है। इसीलिए हम सब लीडर से और हम जिनसे भी मिले, हम ये बात अपना रख रहे हैं। मतलब चाइना मिलिट्री फोर्स ला रहा है इलीगली, उनके आप ऑपोजिशन में हो, विरोध कर रहे हो इसका, ठीक है। दर्शक મિત્રો, જે રીતે ટિબેટિયન ઇન્ડિયન બોર્ડર પોલીસની જો વાત કરવામાં આવે તો ઘણા ક્લેશિસ જોવા મળતા હોય છે, અને આપણે સમાચારમાં પણ સાંભળતા હોય છે કે TIPPના જવાનો ઘણી વખત સંઘર્ષ ચાઇનાના બોર્ડર ઉપર ચાઇનાનું જે કॉन्फ्लिक्ट થતું હોય છે। पर सजी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इंडिया की बात करें तो इंडिया इज़ डिवाइडेड इन टू पार्टीज, टू जनप्रतिनिधियों की बात करें तो एक है बीजेपी, एक है कांग्रेस। यहाँ पे दोनों की जो माइंडसेट है कि जो विचारधारा है उसमें कॉन्फ्लिक्ट मिल रहा है, उनमें ऑपोजिशन है। बीजेपी बोल रहा है कि वहाँ पे बॉर्डर पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कि कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि चीन अतिक्रमण कर रहा है। कांग्रेस बोल रहा है कि अतिक्रमण हो रहा है। ये चीज़ें हैं, और आपकी ये जो दौरा है इसमें आप पॉलिटिकल लीडर्स से मिल रहे हो। पॉलिटिकल लीडर्स का क्या सपोर्ट है, और कौन सी दिशा में भारत को जाना चाहिए ताकि तिब्बत को भी एक सपोर्ट मिल सके? हाँ जी, तो हमारे जो भारत में ही नहीं, जैसे हम यूरोप में जाते हैं और US में भी हम मिलते हैं, जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हर देश में अपना अपना होते हैं पार्टी के अंदर,
लेकिन हम सबसे मिलते हैं क्योंकि ये एक नेशनल इंटरेस्ट के बात है, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, तो उस पे सब एकजुट के काम करना चाहिए। और हमारे ये एक्सपीरियंस रहा है, जैसे यूएस में भी रिपब्लिकन है, डेमोक्रेट है, लेकिन कभी ऐसा टाइम आता है कि वो दो पार्टी अपने साथ बात नहीं कर सकते, लेकिन तिब्बत के विषय पे सब आ जाते हैं क्योंकि ये एक नेशनल सिक्योरिटी का जो अभी यूएस में भी एक थ्रेट चाइना को वो मान रहे हैं। और जो अभी इंडिया में भी हमारे में जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि भारत देश और जो सरकार सबसे ज़्यादा सहयोग अगर किसी ने किया है तो वो इंडिया है। तो रिसेंटली हम दिल्ली में हमारे जो पार्लियामेंट्री मीटिंग रखे, हमने लीडर्स ऑफ बीजेपी और लीडर्स ऑफ कांग्रेस और कोई भी पार्टी हो, हम सब से मिल के अपना ये बात रखा और हमें बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। और आगे भी जाके हम ये आशा करते हैं कि हम सहयोग मिलेंगे, क्योंकि अभी जो हमारे ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है चाइना के द्वारा, जो पूरा विश्व में चाइना एज अ थ्रेट, स्पेशली अभी जो कोविड के बाद पूरा विश्व का जो नज़रा है वो चेंज हो गया चाइना का। और सब सोच रहा है कि चाइना कैसे उसका खुद के देश में भी एक तरह का इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन हो। चाइना का जो थ्रेट वो काफ़ी बढ़ गए हैं डेमोक्रेसी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सब साथ में काम करें। और अभी जो इंडिया का जो डायरेक्शन जा रहा है, जैसे क्वाड हुआ, जैसे इंडो पैसिफिक में हमारा जो सिक्योरिटी के लिए जो अभी जो अभियान चल रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और हमें सब एक साथ उस थ्रेट को समझना चाहिए और हमें अपना साथ काम करके हमें जो तिब्बत के विषय के ऊपर हमें बात रखना चाहिए। हमारा जो पोजीशन है चाइना में, अगर हम सोचता है कि हमारा और ज़्यादा स्ट्रांगली हम रेस करें तो तिब्बत के विषय के ऊपर ज़रूर उसको मान के उसका बात रखना चाहिए। बिल्कुल सर, जैसे कि कोई भी अगर मुहिम चलती है कि कोई भी हम चीज़ करते हैं कि मिलते हैं कि कोई भी आंदोलन करते हैं, उसका एक लक्ष्य होता है। लक्ष्य क्या है आखिर में? कि तिब्बत को पुनर्राष्ट्रीय बनाना है, तिब्बत को चाइना से मुक्त करना है। वो लक्ष्य फर्मली क्या है तिब्बतियन का? हमारा ये लक्ष्य जो तिब्बती हम अपना कल्चर को कैसे प्रिजर्व करें, डेफिनेटली हम तिब्बत को कैसे हम प्रोटेक्ट करें, जो तिब्बतन अंदर में जो तिब्बतन का स्थिति जो मैंने आपको पहले भी किया, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, कैसे उसको हम समाप्त करें और तिब्बती अपना देश में एक अपना आज़ादी से कैसे हम रह सके, ये हमारा लक्ष्य है। और जब परम पावन दलाई लामा जी पहली बार जो भारत में आए तो उन्होंने तब से तिब्बती आज़ादी का जो उन्होंने मार्गदर्शन, स्पेशली नॉन वायलेंस थ्रू उन्होंने जो अपना मार्गदर्शन दिया और उसके द्वारा जो स्कूल खोले, जो मोनेस्ट्रीज खोले, जो सेटलमेंट्स खोले, एक तिब्बती कल्चर जो संस्कृति, जो हमारा बौद्ध संस्कृति जिसका हज़ारों सालों से हमारा जो भारत में हमारा जो लिंक है, ट्रेडिशनल नॉलेज जो हम नालंदा से शुरू हुआ, वो कैसे हम रिवाइव कर सके, वो तिब्बत में कैसे रख सके। तो अभी जो हमारे भारत में लगभग 60 सालों से हमने अपना जो एक कल्चर रिवाइवल किया है, वो हम कैसे तिब्बत में अपना वो आइडेंटिटी रख सके, ये हमारा लक्ष्य है। और परम पावन दलाई लामा जी कहते हैं कि जो शासन जो हिंसा और जो इनोसेंट को जो दबाता है मिलिट्रीली थ्रू गन, अभी के वक्त हमें ये मुश्किल गरी लग सकता है, लेकिन अंत में सच्चाई की जीत होते हैं, जस्टिस की जीत होते हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारे दिल में कि एक दिन तिब्बत आज़ाद होएगा और हमारा देश हम लौट सकेंगे। लेकिन इस कठिनाई के दौर में हमें आप लोगों को सहयोग चाहिए और हम साथ में अगर मिले तो तिब्बत ज़रूर आज़ाद होंगे और हम अपने देश वापस जा सकेंगे। यही हमारा उद्देश्य और लक्ष्य है। डेफिनेटली दर्शक મિત્રો, જે રીતે માન્ય સાંસદજીએ વાત કરી કે લક્ષ્ય એ છે કે હિંસા નથી કરવી, પરંતુ તિબેટને શાંતિથી પાછું લેવું છે, પુનઃરાષ્ટ્રીય ગઠન કરવું છે। પરંતુ આપણે 2-3 વાત કહી દઉં કે પંડિત દીનદયાળ દ્વારા પણ તિબેટ વિશે કહેવામાં આવ્યું હતું કે તિબેટની સ્વાયત્તામાં
આપણા માટે એટલી મહત્વપૂર્ણ છે કે જો ટિબેટ સુરક્ષિત નહીં કરી શકીએ તો આપણી અખંડિતતા અને સ્વતંત્રતાને બહુ મોટો ખતરો છે, આ પંડિત દીનદયાળનું કહેવું છે. સાથે શ્રી જયપ્રકાશ નારાયણનું પણ કહેવું છે કે શું ટિબેટ કાયમ માટે ખોવાઈ ગયું? કારણ કે જે રીતે અતિક્રમણ થઈ રહ્યું છે નકશા ઉપર એ દેખાય છે, એટલે સવાલો ઘણા છે અને આ મહાનુભાવો કહી રહ્યા છે. સાથે અટલ બિહારી વાજપેયીએ પણ ટિબેટના વિશે કહ્યું હતું કે રાષ્ટ્રીય હિતોના દ્રષ્ટિકોણે ટિબેટનો નાશ થઈ રહ્યો છે, અને જે હાલ માન્ય સાંસદજીએ MP આપણને વાત કરી, અને હકીકતમાં લાંબા ગાળે માટે આ ભારત માટે પણ સારું નહીં હોય, એ અટલ બિહારી વાજપેયીજીએ પણ કહ્યું હતું. દર્શક મિત્રો, આશા એ જ રાખીએ છીએ કે જે મુહિમ ચાલી રહી છે, જે આંદોલન ચાલી રહ્યું છે, અને જે રીતે સપોર્ટની વાત ચાલી રહી છે ઇન્ડિયા માટે બોર્ડરની દ્રષ્ટિએ, કારણ કે નોર્ધન પાર્ટમાં તમે જાઓ એટલે તમને એક બ્યુટી જોવા મળે, ઇન્ડિયાની એક બ્યુટી જોવા મળે. નોર્ધન પાર્ટમાં સિક્કિમ આવે છે, કાશ્મીર આવે છે, આ એક સૌંદર્ય છે, આ સ્વર્ગ છે, પરંતુ ક્યાંક એનું અતિક્રમણ થઈ રહ્યું છે. એ થવા દેવું ન જોઈએ, ને એના માટે ટિબેટના લોકો લડી રહ્યા છે, ભારતનો સપોર્ટ માગી રહ્યા છે, અને આપણી ફરજ છે કે આપણે આપણા પાડોશીને સपोर्ट करो. डॉजी जी, आप हमारे साथ जुड़ाए, दर्शक मित्रों से बातचीत की, आपने अपनी बात रखी, हम भी अपने तरफ से बात रख रहे, और हो सकेगा इतना इंडिया आपको सपोर्ट भी करेगा. डिप्लोमेटिक दृष्टि से देखें तो राजकारण दृष्टि से भी आपको सपोर्ट मिले, यही आशा रखते, परंतु आप हमारे साथ जुड़े, दर्शक मित्रों से जुड़े, उस बदल आपका आभार. थैंक यू वेरी मच. ધન્યવાદ છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. દર્શક મિત્રો, કરંટ ટોપિક આજની રજૂઆતમાં વાત કરી કે ટિબેટ, એક નજરે ટિબેટની વાત કરી, આપણી ટિબેટની શું પરિસ્થિતિ છે એની વાસ્તવિકતાની વાત થઈ, ટિબેટમાં કેવી રીતે અતિક્રમણ થઈ રહ્યું છે એની વાત થઈ. આશા રાખીએ છીએ આ જે લડત ચાલી રહી છે, આ જે મુહિમ ચાલી રહી છે, એ એના લક્ષ્ય સુધી પહોંચે. ટિબેટની જે સંસ્કૃતિ છે, ટિબેટનું જે સૌંદર્ય છે, ટિબેટની જે માનવતા છે, એ પાછી આવે અને ટિબેટિયન લોકો પોતાના દેશનું પુનઃ રાષ્ટ્રઘટન કરી શકે. આ જ આશા સાથે કાર્યક્રમને અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ. આવતીકાલે ફરીથી મળીશું એક નવા વિષય વસ્તુ સાથે. ત્યાં સુધી આપ જોતા રહો ગુજરાત ન્યૂઝ, સત્યની સાથે. નમસ્કાર.